Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with the third chapter in political science. We have started it yesterday. We completed the third chapter in geography. So three chapters jab ho rahe hain, so third chapter in geography we have completed. So we need to start the third chapter in political science. Very interesting chapter. Very interesting chapter. Yesterday, some of the things that we have studied from the chapter in which we have understood two girls were there. Yes, I had shown you the cartoon. I had shown you the conversation of these two girls. Remember? Yes. तो वो जा रहे थे and what was the conversation? That people are dying in a district called Patalpuram. पातालपुरम नाम की जगह पे many people have died because of diarrhea. They were talking to each other. क्या डायरिया की वजह से भी कोई मर सकता है? But then in the पातालपुरम district this has happened. ये हुआ है. तो they were really worried. काफी परेशान थे. एंड वाइल दे वर टॉकिंग एंड गोइंग तो अचानक से देखा एक नेताजी के घर के बाहर लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं. देयर हैज बीन अ घेराव आउटसाइड द हाउस ऑफ एन एमएलए. तो वहां पे लेडी ऑफिसर वॉज देयर. कहानी समझने की कोशिश करो. पुलिस ने वहां पे ऑफिसर लगाया हुआ था. शी सेड रुको 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 रुको, उधर नहीं जाना है. दे सेड व्हाई, व्हाट हैपेंड. उन्होंने कहा कि यहाँ पे द पीपल आर वेरी एंग्री फ्रॉम द एमएलए. तो दे सेड अच्छा पीपल हैव, क्योंकि उन्होंने दे सॉ दैट देयर वाज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस जहां लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा क्या कर दिया एमएलए ने. तो द लेडी ऑफिसर हु वाज देयर शी स्टार्टेड लाफिंग. बोले क्या किया है ये तो नहीं पता है, लेकिन क्या नहीं किया है ये पता है. सो दे सेड कि क्या नहीं किया है. So she said कि MLA should take immediate action for all the cases that are happening. So many people are dying and that's the responsibility of the MLA. वहां पे लोग यही नारे लगा रहे थे कि आप पानी नहीं प्रोवाइड कर सकते. You cannot provide water. In the lack of water, people are dying. What is the government doing? Where is the MLA? He needs to answer the question of the people. आम आदमी के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा. इसी चीज के ऊपर बातें हो रही थी. अब what a loud voice has he has. He must be a leader or something. एक आदमी वहां खड़े होकर चिल्ला रहा था, we want immediate health situations under control. Our MLA must take the responsibility for this. एमएलए हैं, घर पे जाके बैठ गए हैं, लोगों का हालत खराब हो रही है. सो मेनी पीपल आर डाइंग. सो द एमएलए हैज टू टेक चार्ज. ओके, दे हैड बीन टॉकिंग अबाउट इट. दे हैड बीन डिस्कसिंग अबाउट इट. तो गर्ल सेड कि ओ माय गॉड, ये ऐसा कैसे हो गया है. हाउ कम दिस हैज हैपेंड दैट व्हाई पीपल आर सो मच रेस्टलेस. लोग इतना परेशान क्यों हैं. गॉट इट. सो दे गॉट द आंसर लेटर ऑन. बाद में समझ में आया. आप ये yesterday it was so shocking when we read that in a district called Patalpuram पानी 3 दिन में एक बार आता है. Once in 3 days. Imagine the condition of the people. पानी के बिना तो हम लाइफ ही नहीं सोच सकते. And here in this place, water is coming once in 3 days. Isn't it shocking? That is what is very clearly mentioned here, children. कि अब हम समझेंगे कि why the people had घेरावed the house of the MLA. MLA का job क्या है? What is the work of the MLA? So let's try to understand first thing here in the chapter. Who is an MLA? आखिर ये MLA कौन है? When we are understanding, try to understand this. तो पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट की कुछ चीजें हमने पढ़ी. Just now that we were discussing.
When we were discussing about पातालपुरम, तो ऑफिशियल नेम आते हैं बहुत सारे. आप देखोगे कि lot of names are also there in this picture. ये जो हम लोगों ने अभी कार्टून, ये जो हम लोगों ने अभी पिक्चर डिस्कस किया, the way we have discussed and we were talking about these people who were there staying at पातालपुरम, तो अब हमको बहुत सारी चीजें यहाँ क्लियर हो रही हैं. Some names are there like collector, medical officer, etc. While talking about पातालपुरम, ठीक है, जब पातालपुरम की बात कर रहे हैं, then we come across names like कि कलेक्टर क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द कलेक्टर डूइंग. और क्योंकि देखो सिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, in any city and every city you will be finding a collector. Collector is that person who is the topmost person in the town who looks after the administration of the town. So what is the collector doing? और medical officer कहाँ है? सब लोग छुप के बैठ गए हैं. आखिर इन लोगों की जवाबदेही बन रही है. They should answer to the questions of the common people. आम आदमी के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा. तो लेकिन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, कभी एमएलए या लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में आपने सुना है? Have you heard? पता करके बताना. Find out who is the MLA in your area. आपके एरिया का एमएलए कौन है? This we will be discussing in the online session. And the MLA who is elected, he belongs to which party? किस पार्टी को ये एमएलए बिलोंग करते हैं, ये भी हम लोगों को समझना है. We need to understand this also. He is from which party, how he has been elected, and so much of how many votes did he get in the elections. Got it? Yes, we will be discussing it in the online class. For now, just the video purpose. Who are MLAs? Let's understand this. MLA is the member of the Legislative Assembly. MLA का फुल फॉर्म समझो, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. ये याद रखना है आपको. ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज MLA एंड ही और शी. कोई भी हो सकता है. एक लेडी कैन ऑल्सो बी एन MLA. ऐसा नहीं है. यस, if any lady is there and who is standing in the election, she can also be an MLA. So that's why I have made here he or she. Member of the he or she is elected by the people. पहला क्राइटेरिया क्या है? Elected by the people. Please understand. When we are electing these MLAs, तो उनका काम क्या? उनको इलेक्शन में अगर वो जीत जाते हैं, what is the further job? करना क्या है इनको? Okay, so these MLAs, they become members of Legislative Assembly and they also form, खाली member of Legislative Assembly का ही काम नहीं करना है, they also form the government. ठीक है, they have to work in as a MLA and for government. Government ने उनको अपॉइंट नहीं किया है. They are not appointed by the government. देखो, there are two things. Some people who are working in the system, कुछ लोग जो सिस्टम में काम कर रहे हैं, either they are appointed by the government. एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स. लेकिन ये एमएलए जो होते हैं ना, इनको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है. They don't need to appear for any examination. They can directly
पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, इलेक्शन में खड़े होते हैं, वोटिंग मिलता है एंड दे बिकम द लीडर्स. ओके, तो एमएलएस दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स. चूंकि हमने इलेक्ट किया है ना, दे आर द वंस हु विल बी गोइंग एंड सिटिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. तो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ डू दे वर्क. दे आर मीन्स एमएलएस आर representatives of people and they are responsible for many work. काफी सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है. क्या काम करते हैं ये? What are the work that is there? अब जैसे कि every state has got a legislative assembly. हर एक स्टेट में एक legislative assembly है and different areas, it is divided into different areas and constituency. Just check this chapter क्योंकि MLA के बारे में समझना. You are understanding the political system that exists in India. इंडिया के political system को समझना जरूरी है. जब तक until and unless you understand the political system of India, आप इंडियन गवर्नमेंट का वर्किंग, इंडियन लीडर्स के वर्किंग को कैसे समझेंगे? How will you understand the working of the leaders, working of the government? So for that, you need to understand the work of the MLAs. Every state in India has a legislative assembly. यूपी में भी है. Every state in India, ठीक है, has a legislative assembly. Got it? यूपी में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है. जो लोगों जहां पे इन द लेजिस्लेटिव असेंबली द पीपल हु आर इलेक्टेड, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जो कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर द पीपल हु गो एंड सिट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, हाँ, इसके बारे में वी विल बी डिस्कसिंग मोर फर्दर. आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे. जैसे कि अब एक मैप है, वी विल बी सीइंग दिस मैप and we will be understanding that how Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. Map of Himachal Pradesh and it is divided into 68 constituencies. Total. Abhi I'll show it to you in the map. Just after this video, I have to show it to you in the map. I need to explain it to you through the map. Himachal Pradesh में 68 assembly constituencies आते हैं. Got it? These constituencies, how they are working, people elect one representative who then becomes the member of the legislative assembly. So, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होता है. पीपल इलेक्ट वन मेंबर फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड दे बिकम एमएलए. ये जो लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके जीत के आएंगे, यही लोग को हम एमएलए कहते हैं. दीज आर द पीपल हु आर कॉल्ड एज द एमएलए. ओके, तो अब ये हमने नोटिस किया अभी तक. व्हाट वी हैव सीन इज दैट पीपल स्टैंड इन फॉर इलेक्शंस में खड़े होते हैं इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज, अलग अलग पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, इन सारे इनके नाम पे ही इन पार्टीज के नाम पे ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं. ओके, एंड दीज एमएलएस बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. अब वो अलग है, दैट इज अनदर पॉलिटिकल गेम ऑल टुगेदर. लेकिन राइट नाउ व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज, हम हिमाचल प्रदेश को समझ रहे हैं.
हिमाचल प्रदेश के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं एंड हिमाचल प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात कर रहे हैं. So much we are talking about Himachal Pradesh. I need to be with the map. So let's do it from the book itself, where I'll be explaining you all the things in detail through map. Okay, come children, let's see the map. So students, just now I told you that I'd be showing you the Himachal Pradesh map and the different constituencies that are there in Himachal Pradesh. So in these constituencies where Himachal Pradesh is divided into 68 constituencies, right? We were talking about 68 constituencies. वो देखेंगे कल 2 of the pictures were left. We will be discussing about that also. Ki when these two girls were going towards their home from the market, so they were very worried as there was a gheraud of the MLA's house. And when they were asking the lady constable, the lady police, that what has happened, why this kind of a turmoil is there, then what has the MLA done? So she is smiling and telling, क्या what done, इसके लिए तो नहीं पता, but what he has not done. What he has not done, children, वो जो पातालपुरम का हम बातें कर रहे थे, we were talking about पातालपुरम. 3 दिन में एक बार पानी आता है and condition is so bad, जहाँ पे the people are dying because of diarrhea. डायरिया के वजह से लोग मर रहे हैं. सो दिस वॉज एन इशू जिसके लिए द MLA इज़ द पर्सन हु इज़ elected by the people, by the common people, and he is the one who is representing the government. गवर्नमेंट को वो represent कर रहे हैं MLA, the member of the legislative assembly, and he is very angry about he is the one who has to take care of the common people. If he is not doing his duty properly, तो फिर the people get angry, and यही चीज़ हुआ है to this MLA, जहाँ पे the opposition leader is shouting that authority should take immediate action because health situation, देखो health से बढ़ के कुछ नहीं है, ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है. आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन दैट नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट देन हेल्थ. आज के टाइम में आप देख रहे हैं सब चीज़ एक तरफ हो गई है. इशूज़ आर द मेन इशूज़ दैट आर कैचिंग एवरीबडीज अटेंशन. तो जब हेल्थ इशू इतना बड़ा इशू है तो हमको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ the health of the people is to be maintained. Opposition leader is talking about this point only कि अभी तक गवर्नमेंट ने इतने सारे लोग मर रहे हैं. व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग? गवर्नमेंट ने किया क्या है? तो दिस इज़ व्हाट यहाँ पे खड़े होके वो शाउट कर रहे हैं. एंड शी इज़ सेइंग व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज़. तो कह रहे हैं कि यार इनको तो मतलब ही इज़ अ पर्सनालिटी, ही इज़ अ फेमस पर्सनालिटी, इनको तो मैंने टीवी में भी देखा है. ऑपोजिशन के ये मेंबर है, चुप हो जाओ नहीं तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए. दिस काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन इज़ गोइंग ऑन. सो व्हेन दिस काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन इज़ गोइंग ऑन, अब हमने आज क्या पढ़ा कि हु इज़ एन MLA. जस्ट सी सम ऑफ द क्वेश्चंस आर हियर. चिल्ड्रन, यू नीड टू सॉल्व हैपनिंग इन पातालपुरम. पातालपुरम में क्या हो रहा है? पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ डायरिया. डायरिया की वजह से बहुत सारे लोग मर गए हैं. आई मीन दैट इज़ अ प्रॉब्लम ड्यू टू विच पीपल आर डाइंग. ओके, वाई इज़ द प्रॉब्लम सीरियस? बिकॉज water issue is a big issue. People are not getting proper water to drink, due to which many people have lost their lives. Got it? These questions are important. हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में भी इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए. Might be possible that some questions are asked from here only. Got it, children? So यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? Above situation that is given,
हु शुड टेक दिस एक्शन, ये सारा काम कौन करेगा, इसी के बारे में हमको बात करनी है कि MLAs आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल। एंड अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, एक और है, we will be discussing it in the online session, the terms like public meeting. Public meeting क्या होता है? Public meeting where the people are meeting and discussing on some important issue. कोई ऐसा काम हो गया है जिसके लिए कि people are really, and when the discussions happen on this, it is called as public meeting. The states in India, which are the major states in India जहाँ पे इतना सारा काम हो रहा है. Of course, the states in India, India is divided into 28 states and then union territories. How many union territories and states are there? I think you know it very well. Constituency. Constituency क्या होता है? When the state is there. State is, जैसे UP is such a big state. Elections कैसे होंगे यहाँ पे? So the UP state has been divided into different constituency. छोटे छोटे parts में divide कर दिए जाते हैं and from there the people are elected. Such a big state, who will be taking care of all these matters? कौन इन सब चीज़ों की देखभाल करेगा? द मेजॉरिटी विल टेक केयर और द रूलिंग पार्टी और द ऑपोजिशन, कि आखिर इन सब चीज़ों की देखभाल, इन सब चीज़ों को कौन संभालेगा? हु विल बी लुकिंग आफ्टर ऑल दिस? ओके, तो रूलिंग पार्टी इज दैट पार्टी विच हैज़ वन द इलेक्शन. इलेक्शंस होते हैं, इसमें द पीपल हु हैव वन द इलेक्शंस, they are the ruling party, and who have lost the elections, they are the opposition party. रूलिंग में नहीं भी आ पाते हैं तो ऑपोजिशन में तो आ ही जाते हैं. गॉट इट? दैट इज द सिनेरियो. अब some more terminologies are there, you can explain it. कौन कौन से टर्म्स हैं? जैसे मेजॉरिटी है. मेजॉरिटी मीन्स द पीपल, any party who has got vote on a very large scale. जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, दैट इज़ मेजॉरिटी. रूलिंग पार्टी, जिसको मेजॉरिटी वोट मिले हैं, वही रूलिंग पार्टी है. एंड ऑपोजिशन इज इन रेफरेंस टू आवर स्टेट द पीपल हु हैव लॉस्ट. जो लोग इलेक्शंस में नहीं जीत पाए हैं, जो हार चुके हैं, दे आर कॉल्ड एज द ऑपोजिशन पार्टी. ओके, अब यही चीज़ आई वॉन्टेड टू शो यू दिस मैप. जस्ट सी दिस मैप चिल्ड्रन. ओके, हम किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर, सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो, वेयर इज़ हिमाचल प्रदेश. इस मैप में आपको हिमाचल प्रदेश कहाँ पे नज़र आ रहा है? सो यू कैन सी दिस HP. यहाँ पे उत्तराखंड है, इधर इधर हरियाणा है, इधर पंजाब है, एंड ये हिमाचल प्रदेश है. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टेट्स ऑफ इंडिया. खूब सारे पहाड़ हैं. And the people, I mean the air is very nice, the environment is very good. So that's why a very known place to people. बहुत लोग यहाँ पे स्पेंड करने के लिए जाते हैं. एंड पीपल स्पेंड द टाइम हियर एंड रिजुविनेट. पहाड़ों की जो हवा होती है ना, बहुत ही फ्रेश एयर होती है. So this fresh air brings lot of rejuvenation. People get rejuvenated, people get very energized. So that is what is Himachal Pradesh all about. ये हिमाचल प्रदेश है. अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? Just see, this is what is हिमाचल प्रदेश. सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं. ओके, एंड हिमाचल प्रदेश में there are, look at the constituencies. कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब छोटे छोटे बना दिए गए हैं ना. जस्ट सी 68 आर देयर. व्हाट आर द कलर्स? जस्ट सी द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कलर्ड इन पर्पल इन द अबव थंबनेल मैप ऑफ इंडिया. ऊपर में देखो, ये पर्पल कलर में है. आई हैड ऑलरेडी शोन इट टू यू. दिस इज द पर्पल कलर जिसमें कि वी आर सीइंग द हिमाचल प्रदेश. इसके बाद दिस स्टेट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसी. इसी स्टेट को फिर बड़ा करके दिखा दिए. ऑन वन साइड इज जम्मू एंड कश्मीर, एक तरफ पंजाब है, एंड एक तरफ उत्तराखंड है, एंड दिस इज व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी. बिग कॉन्स्टिट्यूएंसी 68. ये देखो छोटे पार्ट्स. अब समझ लो जैसे कि 68
टोटल हैं, दिस इज 66, दिस इज 25, दिस इज 29. तो एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट इज डिवाइडेड, जिसको कुछ ना कुछ नंबर दिया गया है, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से कुछ ना कुछ सम पीपल वुड बी इलेक्टेड. जो इलेक्ट होंगे उनको हम क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड एज दी MLAs. ठीक है, इनको हम MLA कहते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज, इलेक्शंस हुए, रिजल्ट देखो हिमाचल प्रदेश का इलेक्शंस में क्या रिजल्ट है. पहले तो ये देखो, जस्ट सी MLAs मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं. हाउ डू द MLAs बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर. एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके की MLAs हैं, दे हैव वन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. आधे से ज़्यादा जगह जो है उन्होंने जीत ली है. हाफ कॉन्स्टिट्यू 68 है, 68 का हाफ कितना हुआ? 34. तो इफ द विनिंग पार्टी, द पीपल हु आर मेकिंग द गवर्नमेंट, 34 से ज़्यादा सीट्स अगर उनको मिले हैं, देन दे आर द विनर्स. उनको आगे और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. गवर्नमेंट बनाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे, दिस इज समथिंग वेरी गुड. ये बहुत अच्छी चीज़ है, इजंट इट. आप द MLAs जो हाफ से ज़्यादा सीट्स जिनको मिल गई है, हु हैव वन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, आर कॉल्ड एज मेजॉरिटी. इनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम मेजॉरिटी. और पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी है, दे आर कॉल्ड एज द रूलिंग पार्टी. उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम रूलिंग पार्टी कहते हैं. बाकी के सारे लोग क्या है? द अदर पीपल आर द ऑपोजिशन. होल ऑफ द ग्रुप, होल ऑफ द पीपल हु हैव लॉस्ट. भैया कोई जीतेगा एंड कोई हारेगा. तो जो जीत गया है वो गवर्नमेंट बना लेगा, दे आर द मेजॉरिटी, एंड रेस्ट एवरीबडी इज माइनॉरिटी. नहीं कहते उनको, हम कहते हैं कि दे आर द वंस हु आर सिटिंग इन द ऑपोजिशन. जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज देयर, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर. 68 constituencies are there. अब देखो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का नाम दिया हुआ है. द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज गिवन हियर. रिजल्ट देखो, रिजल्ट से यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि हाउ द MLA इज मेड एंड हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड. आप देखिए, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी. कितनी सीट मिली इनको? 44. चाहिए कितना था? 34. 10 ज़्यादा सीट्स मिल गए हैं. 44 सीट्स दे हैव गॉट. This shows and this proves that they have won the elections. They are the majority party, BJP. इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद comes the Indian National Congress, INC. Indian National Congress, जिसके पास की 21 seats are there. 21 seats में we have the Indian National Congress. Then we have the Communist Party of India, Marxist, CPIM. Communist Party of India, Marxist is just 1 seat मिला है. And then कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, who don't belong to any party. Independently elections करते हैं. तो such candidates are 2 candidates जो कि किसी पार्टी को नहीं है. दे आर इंडिपेंडेंट. इनको हिंदी में कहा जाता है निर्दलीय प्रत्याशी. निर्दलीय, जो किसी दल को बिलोंग नहीं करते हैं, निर्दलीय. सो दिस इज हाउ द इलेक्शंस हैड हैपेंड. रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन एंड जिस तरह का हिमाचल प्रदेश में द वे इलेक्शंस हैड हैपेंड एंड द रिजल्ट्स आर देयर. आप यूपी में रहते हो, कैन यू मेक सच डेटा फॉर योर स्टेट? यूपी के लिए बना सकते हैं? ज़रूर बना सकते हैं. ट्राई कीजिएगा. गॉट इट? प्लीज़ ट्राई इट एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट, एंड दैट इज़ हाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट सिस्टम. अब MLAs have won and ये this is the election result of हिमाचल प्रदेश, the elections that were held in 2017. एकदम recent है, बिल्कुल अभी अभी का डेटा है. तो 2017 के इलेक्शंस का डेटा दिया हुआ है एंड यू कैन वेरी वेल सी विच पार्टी हैज़ वन एंड विच पार्टी हैज़ लॉस्ट.
टोटल नंबर ऑफ MLA कितने हैं? 68 हैं. एंड पॉलिटिकल पार्टी को कितना चाहिए था? 34 MLAs हैं जिस पार्टी में. There are 44 MLAs. They had the majority and it became the ruling party. यहाँ से उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया, रूलिंग पार्टी बना लिया. एंड द पीपल हु हैड लॉस्ट, दे वेयर सिटिंग इन द ऑपोजिशन. INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये था रिजल्ट्स. ठीक है चिल्ड्रन, आई वॉन्टेड टू शो यू द मैप सो दैट आई हैव शोन यू. देन वी हैव डिस्कस द रिजल्ट. रेस्ट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो. टिल देन चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.